चिल्ड्रेन टुडे माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी. एनर्जी में क्या है? द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of work it can do. If the situation is zero energy, the energy which can do the work, the capability of an object to do the work is called the energy. कितनी कैपेबिलिटी से कोई काम अगर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी. हम कहते हैं ना कितनी एनर्जी से काम करते हैं, कितनी कैपेबिलिटी से हमने कोई वर्क डन किया, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी. द एनर्जी possessed by an object is equal to the capability to do the work. We need energy because they do the various activities in our daily life. Various energy sources are used to obtain this energy, but their chief sources of all the energies is sun. Sun is a main source of all energies, such as energy from food, energy from animals, energy from fossil fuels, energy from tides, geothermal energies, etc. They are the main source of energy. तो इसके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आएंगे? sun, flowing water, tides, volcanoes, all are the sources of energy. Sources of energy due to the sun is the blowing wind, flowing water, volcanoes, tide, etc. Sources of energy not due to the sun, petrol, diesel, coal, nuclear energies, but they are not due to the sun. सन से हमें नहीं मिलती है. ठीक है. एनर्जी को मेजर किया जाता है. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द वर्क. जैसे वर्क की होती है एनर्जी, वैसी ही हमारी एनर्जी जो यूनिट हमारी वर्क की होती है वही हमारी एनर्जी की भी होती है. दैट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी से क्या होती है? जूल. इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? जूल. अब इसमें क्या होता है? द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एनर्जीज़ में. किस फॉर्म में होती है एनर्जी? एनर्जी इज़ फाउंड इन अ वेरियस फॉर्म अमंग देयर सम एज फॉलोज. द फर्स्ट इज़ मैकेनिकल एनर्जी. फर्स्ट इज़ मैकेनिकल एनर्जी. सेकेंड इज़ थर्मल एनर्जी. Thermal energy. The third one is light energy. Fourth one is chemical energy. Fifth one is electrical energy. Sixth is sound energy. Seventh is nuclear energy. And the next is eighth one is solar energy. तो आपकी ये सब जो है इसके फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें से हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे. इन सब को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे. इनको बस हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं. देखिए, थर्मल एनर्जी के बारे में बताएंगे. तो पहले इसको हम लिखवाएंगे, इसको मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं. थर्मल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑब्टेन बाय अ burning of fuels is called the thermal energy, such as steam engine, petrol engine, diesel engine, that are called in the thermal energy. Light energy by the light energy क्या है? The energy of the virtue which can see the object and the light energy, so as electric bulb, candle, sun, they are including in a light energy. Chemical energy में क्या है? They are obtaining the chemical processes chemical processes, that means are called the petrol, diesel, coal, they all are including in a chemical energy. Okay. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बेटो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी द एनर्जी विच इज़ transmitted through the electrical energy is in the process to transmit it through the electric current is called the electrical energy. That means electric cell, electric generator, such as this etc. Sound energy. The sound energy is the virtue they hear the sound through the vibrations is called the sound energy, such as loudspeakers. Nuclear energy, the nuclear energy which can the form of the nuclear processes is called the nuclear energy, such as
nuclear fission, nuclear fusion, they all are including in a nuclear energy. Solar energy, the energy obtained from the sun, this is called the solar energy. क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा इन टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ में, तो इसलिए हम इसको लिखवाने नहीं, आप इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी जिनके बारे में बता रहे हैं. देखिए मैकेनिकल एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग इज माय मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी. ओके, देखिए इसमें क्या है, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its mechanical work is called mechanical energy, is called mechanical energy. ठीक है, such as falling stone, arrow thrown from stretched bow, key lock, spring, pressed spring, etc. They all are including in a mechanical energy. Mechanical energy are two types. Mechanical energy is of two types. The first is most important part, children, kinetic energy. Mechanical energy is of two types. The first is kinetic energy and the next one is potential energy. Now we will discuss the kinetic energy. Kinetic energy के बारे में लिखेंगे the capability of a moving object to do work due to its motion is called kinetic energy of object. Kinetic energy of object, the capability of a moving object to do work due its motion. Motion के around अगर कोई work done होता है किसी moving object में, that is called the kinetic energy. Motion के around kinetic energy को denote करते हैं. Kinetic energy is denoted by K और EK. ठीक है, and its SI unit is joule. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में हो गया. Kinetic energy, the capability of a moving object to do work due to the motion. Its kinetic energy is called kinetic energy of an object. Is denoted by K, यानी EK भी कह सकते हैं. इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है. जूल किसकी होती है? वर्क डन की भी होती है, एनर्जी की भी होती है. और एनर्जी का टाइप है मैकेनिकल एनर्जी. दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स हैं. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखवाया, इन दोनों की यूनिट क्या होंगी? जूल होंगी. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ द नेक्स्ट, तो इसका एक नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे. प्लीज़ राइट नेक्स्ट हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग मीन्स एक्सप्रेशन फॉर
काइनेटिक एनर्जी। इसके एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिखिए इसमें। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सप्रेशन। किसका क्या फॉर्मूला बनता है फॉर, क्योंकि ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, इसलिए आपको बता रहे हैं ये एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखिए, लेट अस एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, मास इज़ m हो गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ये मूविंग कर रहा है, मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है u, इनिशियल वेलोसिटी, इट अटेन्स इन अ वेलोसिटी v इन कवरिंग अ सम डिस्टेंस s कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v। इज दैट क्लियर? और अप्लाइंग अ फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस पर वो क्या लग रहा है, f फोर्स लग रहा है। लेट अस एक्स एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट अप्लाइंग ऑन द, एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो गया चिल्ड्रन। एक्सेलरेशन इज स्मॉल a, क्लियर? तो अब ये मूविंग कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सम डिस्टेंस s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। नाउ वी विल नो दैट ऑल द एक्सप्रेशंस फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, u v s a आ रहा है। दैट मीन्स वी विल यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा इसमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे s की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर चिल्ड्रेन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फोर्स क्या अप्लाई किया गया हमने अगर, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू a। सो यानी देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स, क्या लगेगा, फोर्स अगर F होता है तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a कैंसिल हो गया, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब दो वेलोसिटीज़ ये रहेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं। क्लियर? अगर इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली वो कहाँ है, रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, यानी w इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? हाफ एम वी स्क्वायर। द वर्क डन ऑफ द फोर्स विद इज reduced the capacity of doing the work, much amount of work in object, the capability of the work in the moving position is called the kinetic energy। therefore kinetic energy निकल आई आपकी, kinetic energy of object of k और ek is equals to half एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। अभी हम एक न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या आपको न्यूमेरिकल ओके। तो ये इसको आपको करना है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट, इसका एक न्यूमेरिकल देख लीजिए बेटा, एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट of mass 15 kg is moving with a uniform velocity 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? ठीक है, तो देखिए
मास आपको दे रहा है 15 kg, v आपको दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू 15, v का मतलब हो गया 4 इंटू 4, दैट मीन्स 120 जूल। काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई 120 जूल। ठीक है बेटा, ये इसका सोल्यूशन था। तो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 120 जूल। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल से अगर दो वेलोसिटीज़ ही रहेंगे, इनिशियल एंड फाइनल, देन यू विल राइट द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखवाया था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं अगर दो वेलोसिटीज़ ये रहेंगे तब। ओके, तो अब जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी करानी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम कराएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अभी आप इतना पढ़ लीजिएगा, इसमें जो कुछ पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।